Previously, I have worked extensively at TechJuice. It's Pakistan's leading technology publication. And I've also worked at Upwork and Fiverr. Currently, I'm a Fiverr level 1 freelancer, and I have a 90% plus success rate on Upwork. So I'll be guiding you through the fundamentals of what exactly is content writing. हम explore करेंगे like how you can become a content writer and how you can write, stunning articles which rank well on Google. Then you have captions and some other forms of content writing जो कि essentially बहुत important है और हमें obviously सीखनी चाहिए. And then I'll also discuss some success stories. Basically, कुछ लोगों को मैंने जो train किया हुआ in the past जो है over the span of my university life and where do they stand right now उनके बारे में भी हम discuss करेंगे. As a matter of fact, they are joining us today. तो उनसे भी we can also have a few question answers with them how their content writing career so far is going. And then we'll discuss how content writing can be a side hustle for you. Basically, even if you have a main job, you may be working somewhere, let's say as a lab engineer, say as a coder, as a freelance, as a developer or so forth. Content writing के through आप एक additional revenue source, एक additional salary अपने main career को complement करने के लिए भी रख सकते हैं. Or you can just learn this skill and you can excel in almost every other domain. In almost every domain, you can say हर industry के अंदर ये content writing आ सकती है. We'll discuss about search engine optimization. We'll discuss how your articles, how your content needs to go to, you can say social media, और वहाँ से आपने views वगैरह कैसे gather कर रहे हैं. And then we'll discuss some Upwork and Fiverr basics. And if you want to go away from these platforms, how you can get some freelance work aside from these platforms. तो ये भी एक strategy हम कुछ strategies discuss करेंगे इसके अंदर. These three, I would say, content writing itself, SEO and freelancing, ये तीन diverse topics हैं. I've tried my level best to keep them as short as possible, with all the tips that I know, all the tricks that I've learned this session. So I hope that they will be beneficial for you. So you might be wondering, like, if you're, let's say, a developer, अगर आपकी या कोई भी career है, you're, let's say, getting around 1,50,000 per month, you might be asking, why do I need to learn content writing? तो उसमें एक simple सा इसका जवाब ये है कि आपका जो मर्जी प्रोफेशन हो, उसमें आपको content writing benefit कर सकती है. उसमें आपको एक additional revenue source मिलेगी aside from your main job. And that will allow you to, in case let's say COVID की वजह से बहुत से लोगों की jobs वगैरह खत्म हो गई थी. So like at that time, if they knew another skill, they had a side hustle, they would be able to, survive through the pandemic. But half of the people had to go through loans and, XYZ, बहुत सी headaches वगैरह के through गुजरना पड़ा. फिर एक ये भी बात है कि like बहुत से लोग कहते हैं कि हमने we don't get time to read. So like उसका एक process है. When you want to write something, you need to learn about the subject topic that you're writing about, and that inherently forces you to go to the internet and search. So मेरा personal जो आज का मेरी habit ये है कि मैंने medium.com भी आगे हम discuss करेंगे उसके regarding भी, तो मैंने उसकी subscription ली हुई है. So what I do is I try to read as many articles as possible. मेरा like schedule लोगों का ऐसा होता है they don't get time to read books. So what I recommend them is that you should try and read, let's say, 2 to 3 articles per day, जो कि उनके domain के relevant हैं, because it gives you perspective, it gives you viewpoints of other people, it allows you to learn and get to know what other people are doing in your relevant domain. Another thing, obviously, is कि आपकी writing skills develop होती हैं. This skill has allowed me to publish my own research paper. Basically, converge करती है content writing के आगे further domains आ जाते हैं. When you know how to write well, let's say, you can become a technical writer, or you can become, let's say, a copywriter अगर आप marketing side पे, sales side पे अगर आप आगे जाना चाहते हैं. And then this skill is easiest to learn in comparison to all other skills as well. Also, I just want to ask, recording start हुई भी है? Okay, cool. ठीक है. Say it. Right. So let's talk about the first success story. Tareem is joining us today. She learned content writing from me, and she also learned graphic designing. We both worked on a startup. It was called TCD,
And after 1 year of working and creating her portfolio of content writing, she secured a 3-month job at a US-based company called Sleepair, and she was getting paid around $300 per month. And तहरीन की अपनी यूनिवर्सिटी ना होती तो मेरे ख्याल से अभी वो जॉब कंटिन्यू कर रही होती. But you can realize this from a fact that, like, if you compare the average internship rate जो stipend होता है in the market versus जो यहाँ पे $300 per month इनको ये मिल रहा है, there is a huge difference. So yeah, you can see it's an example for all of us why we need to start learning new skills. And then afterwards, when she left Sleepair, she got an internship at TechJuice, once again, Pakistan ka leading publication hai. And afterwards, at an edtech startup, Air School, so with the same designation. So basically, this skill has allowed her to first earn at a US-based company and then at 2 local companies. So it's, in short, it's an enabling skill. Here you can, Shifa bhi join kare. She's also my class fellow. She also learned alongside Tareen through me. So right now, I believe she has earned more than 1 lakh through content writing. And previously, she was telling me with client Bilal tha Saudi ka, who was paying her, I think, 2 PKR per word. Shifa, agar main galti mein 2.5 PKR per word, I think she can correct. So that essentially shows कि like कितनी demand है इस skill की इसके अंदर जो है. And she also got an internship at a local tech startup later on after learning that skill. Then thirdly we have Abdullah Saeed, quite a popular personality in Nust social media. कहेंगे कि अभी recently क्या कहते हैं conference में भी थे, तो इन्होंने content writing सीखी है during the pandemic. इन्होंने कहा कि नहीं ज़रा pandemic को थोड़ा productively spend करते हैं. So he learned about content writing and then he later learned about freelancing. Kaise, how can you earn money through freelancing? So he's a Fiverr level 1 freelancer, and he has over 5 stars rating here with over 30 plus reviews. And you can hire him if you want. अगर कोई यहाँ पे अपना blog वगैरह start करना चाह रहे हैं and they want के quality articles इनको चाहिए हो तो like you can hire Abdullah Saeed from Fiverr. का लिंक नीचे दिया हुआ है. इट्स कॉल्ड fiverr.com/Abdullah Saeed 25. तो खैर ये तो थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे हो गई हैं. So I think we should start with the main session, and that is कि like what exactly is content writing. So content writing is the form of producing, like you need to produce articles, you need to produce captions, but उसमें ना एक 3-stage process है जो सारों ने follow करना होता है. Essentially, if you take a look at these 3 steps, planning, writing, editing, अब first step is follow, जो follow होता है वो हर skill में होता है. आपके पास graphics है, आपके पास development है, उसमें planning stage तो हर जगह involve होता है. अब content writing के अंदर planning stage कैसे involve होता है? It's followed through the fact कि we have to outline the structure of the article. We have to underline what are the main headings of an article. And then after we have highlighted the main headings of the article, we need to understand what we need to put inside those headings. So like we need to do some extensive research. We need to come up with statistics. We need to come up with quotations and so forth. So when we have researched and gathered all the material, then we get to the writing part where we compose the main content body. The main content body के अंदर आपका जो अभी मैं आगे आर्टिकल्स का पूरा एक ब्रेकडाउन दिखाऊंगा आपको कि कैसे एक आर्टिकल का ब्रेकडाउन होता है. तो उसमें आपको पता चलेगा कि लाइक हर आर्टिकल की कैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और उसके अंदर आप कैसे आप मेन कंटेंट बॉडी को एडजस्ट करते हो. एंड हाउ इंक्लूडिंग कोटेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स लाइक यू कैन इंक्लूड. अगर आप कोविड के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप एनसीओसी के लेटेस्ट स्टैट्स इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर टू मेक या emphasize your point कि कैसे आजकल पाकिस्तान में या इंडिया में हालात बहुत ग्रेव हैं and they are getting worse day by day. So you can include those statistics to reinforce your point. So like that's one thing. And then when you have drafted, let's say the main content body जो आपका ये cover हो गया हुआ है, आपने पूरा एक article draft कर लिया हुआ है, फिर उसके बाद the most important point is कि आपने उसकी थोड़ी सी A/B testing करनी है and आपने उसको proofread करना है. Proofreading is one of the most important parts of these 3-stage process. उसकी वजह ये है कि like
people don't like proofreading. They may draft the article. मैं खुद भी अगर मैं article draft कर लेता हूँ, I rarely get time to like spend time to like proofread it. But it's an essential process because उसमें mistakes obviously होती हैं, and when you become a full time writer और आप on the with the flow लिखे जा रहे हैं तो बीच में even if you have let's say Grammarly or any other extension, तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह उस कंटेंट के अंदर होंगे जो आपको रेक्टिफाई करने होंगे। एंड मेरे साथ ये हो चुका हुआ है कि मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह प्रूफ रीड नहीं किए थे, वो बाद में वो पब्लिश हो गए थे, एंड दोस आर्टिकल्स लेटर क्रिएटेड एन इशू फॉर मी बिकॉज वो लेट्स से आप किसी रीडिंग पब्लिकेशन के लिए लिख रहे हो और आपने एक आर्टिकल में लेट्स से टाइटल के अंदर ही एक बेसिक मिस्टेक कर दी है किसी वर्ब की, प्रोनाउन की, तो वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर कि भाई दिस गाय डजंट इवन नो हाउ टू राइट वेल। तो एक तो ये है कि आपने ग्रामर करेक्शंस देखनी है और आपने लेट्स से इफ यू राइट एन आर्टिकल, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू एट टेक जूस इट वाज कि हमारा एक पीयर रिव्यू प्रोसेस होता था। लेट्स से आप कल से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने साथ एक कॉलीग को रख लें, ठीक है, आप एक आर्टिकल लिखा करें, आप वो आर्टिकल जो है उस कॉलीग को दें, कॉलीग से जो है उसको पढ़ाएं पूरा, उनसे फीडबैक लें, एंड देन यू कैन डू सम ग्रामर करेक्शंस इन इट, या लेट्स से जो भी ओवरऑल आर्टिकल स्ट्रक्चर में जो वो रिकमेंडेशंस आपको दे रहे हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट करें इन द आर्टिकल। बिकॉज लेट्स से अगर आपको एक व्यू पॉइंट बहुत सिंपल लग रहा है और आपने सोचा कि ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर ये बहुत सिंपल है और लोगों को समझ आ जाएगा, इट मे नॉट बी द केस एक्चुअली। लोगों की एप्रीहेंशन या लोगों की कॉम्प्रीहेंशन ना डिफरेंट हो सकती है। So this is something that you need to keep in mind while you're drafting your articles. You need to get feedback, continuous feedback, and this will allow you to become a better content writer. फिर जो है आपके पास SEO आ जाती है। SEO stands for Search Engine Optimization. उसमें ये है कि like drafting an article is one thing, but getting people to read it is entirely another thing. तो इसकी different strategies हैं कि like how you can get people to read your articles. उनमें से number one, the most employed one is search engine optimization. उसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आपके आर्टिकल्स या आपके जो भी कंटेंट वगैरह उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। Let's take a look at an example. अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि like I want you to write an article on quantum computing, ठीक है, तो like इस एग्जांपल को मैं अपने प्रीवियस सेशन में एक दो दफा यूज कर चुका हूँ, मैंने उसका आर्टिकल भी लिखा हुआ है, बट ये मेरे डोमेन का लेट्स से आर्टिकल, लेट्स से आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो लाइक आई कैन से मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया होगा एज कम्पेयर टू समवन जो कि लेट्स से अप्लाइड बायोसाइंसेस कर रहा है या साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहा है। सो लाइक यू कैन चेंज द टॉपिक फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटिंग टू एनी टॉपिक विच इज रेलिवेंट टू योर डोमेन, ठीक है, तो आप उसको एज एन एग्जाम्पल लें। सो लाइक इफ आई असाइन यू this article, let's say, so like अब इसके steps क्या होंगे when you are going to write an article on it। तो इसमें ये है कि like planning stage पे जब हम आएंगे, planning stage के अंदर हमने definitions को देखना है कि like what are the associated definitions with quantum computing, what are the associated terms with quantum computing, while keeping in mind कि I may know a lot about quantum computing, like the nitty gritty and a lot of other details, but what I need to understand is जो lay person है, let's say मेरा article कोई वो रीडर पढ़ रहा है जिसका डोमेन लेट्स से बायो की साइड से या किसी और डोमेन से है, वो लेट्स से कोई भी अदर फील्ड से, तो लाइक व्हाट डू दे नीड टू नो। So in that particular case, I need to keep my article conversational. I need to keep my article concise. I need to keep my article to the point. जो चीजें include होनी चाहिए, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए, let's say, वो ही मेरे इसके अंदर include करनी चाहिए। So with that being said, when you have gathered the content, you need to finalize the headings, the headers of the article. Let's say you need to finalize the definition. You need to finalize, let's say इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम के अंदर अनीलिंग का, तो मैंने कहा कि मैं अनीलिंग के बारे में बताऊंगा। एंड देन व्हाट आई थॉट कि एक अच्छा टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो हमने आज लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, हाउ दे डिफर फ्रॉम द अपकमिंग टेक्नोलॉजी विच इज क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये मैंने एक इसकी हेडिंग सोच ली फर्दर। फिर मैं राइटिंग स्टेज के ऊपर आ गया हूँ। अब जब मैंने हेडर्स वगैरह फाइनलाइज कर लिए हैं, so like I come towards the writing part. So I started off my article with a recent stat about quantum computing. Let's say in the news अगर quantum computing की कोई बात हो रही है, आप उसी को देख लें, उसी के अंदर कोई चीज़ कोट कर लें अपने आर्टिकल के
पहले पैराग्राफ में, विच इज कॉल्ड द लीड ऑफ द आर्टिकल। लीड ऑफ द आर्टिकल बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसके बारे में आप आर्टिकल के कोई स्मॉल प्रिसाइज डिटेल्स देते हैं जो बेसिकली बिल्ड अप टू द मेन कंटेंट। इट्स कॉल्ड लीड ऑफ द आर्टिकल। अभी आगे उसका पूरा एक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा मैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने डिसाइड करना है कि लाइक मेरे पैराग्राफ्स कितने बड़े होंगे। तो आई ट्राई कि मेरे जो पैराग्राफ्स हैं वो अराउंड 5 लाइन्स या 5 लाइन से लेस हो, एंड आई ट्राई टू कन्वे अ न्यू पॉइंट इन एवरी पैराग्राफ, या लेट्स से थोड़ा सा उसको रेलेवेंट रख लूँ विद द मेन हेडिंग जिसके अंदर मेरा एक पैराग्राफ वगैरह आ रहा है। एंड देन ऑब्वियसली हर पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग्स जरूर होनी चाहिए, एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप लेट्स से 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स का आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, अगर आपने आर्टिकल को डाइजेस्टिबल बनाना है, इजीली रीडेबल बनाना है, तो यू नीड टू यूज हेडिंग्स। सो लेट्स से इफ यू आर राइटिंग अ 1000 वर्ड्स आर्टिकल, ठीक है, तो लाइक यू कैन यूज अराउंड 3 to 4 हेडिंग्स या 5 हेडिंग्स पे आप जरूर उस आर्टिकल को स्ट्रक्चर करें ताकि लोग आराम से उसको पढ़ सकें एंड दे इजीली डाइजेस्ट द व्यू पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू गिव देम। एंड इन दिस केस ये जो आर्टिकल है, लेट्स से आर्टिकल का टाइटल मैंने रख दिया है everything you need to know about quantum computing. So it's essentially a tutorial based article. अब tutorial based article के अंदर मेरी ओपिनियन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। मैंने जो टॉपिक के रेलिवेंट डिटेल्स हैं, जो रिसर्च हो रही है, जो एकेडेमिया कह रही है उसके बारे में, जो इंडस्ट्री कर रही है उसके बारे में, मैंने सिर्फ वो डिटेल्स बतानी है, और मैंने जो यूजर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको ईजी टू वे में लोगों को बयान करना है, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल की टोन को कॉन्वर्सेशनल रखना है और मैंने उसको एकेडमिक टोन में एक्सप्लेन करना है आर्टिकल को। देन आफ्टरवर्ड्स जब मैं इस चीज से गो थ्रू कर चुका हूँ तो मैं करता ये हूँ कि मेरे पास ग्रामरली की एक्सटेंशन है, और यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एडिटर। मैं गूगल डॉक्स पे अपने आर्टिकल्स जनरली कंपाइल करता हूँ। सो लाइक एनीवन इफ यूजिंग वर्ड, तो आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल डॉक्स पे शिफ्ट कर दें। इट्स मच बेटर व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग आर्टिकल्स एंड इट्स मोर इजियर टू कोलैबोरेट ऑन गूगल डॉक्स। तो आप गूगल डॉक्स यूज करें, उसके साथ ग्रामरली की एक्सटेंशन रख लें या माइक्रोसॉफ्ट एडिटर की एक्सटेंशन रख लें, एंड देन जो भी एरर्स वगैरह आ रहे हैं उसको रूट आउट कर लें। देन यू ऑल्सो नीड टू प्रूफ रीड लाइन्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं आप लोग के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा लंबे अगर हो रहे हैं तो वहां आपने उनको कट डाउन करना है। यू नीड टू गिव पॉजेस सो दैट द यूजर, जब एक फुल स्टॉप आता है ना, अननेसेसरी फुल स्टॉप नहीं डालने, बट जहां आपने फुल स्टॉप डाला है वहां पे एक यूजर वो ब्रेक लेगा पूरा व्यू पॉइंट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपने प्रॉपरली अपने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है। एंड देन व्हेन यू आर राइटिंग फॉर लेट्स से एन एसईओ एजेंसी, लाइक आपने फ्यूचर में एक किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं और वो आपको कहते हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहिए, तो आपने ये देखना है कि आपने कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग को स्ट्रक्चर करना है विद इन द आर्टिकल। लेट्स से अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो वन माइट से कि अराउंड 10 टाइम्स क्वांटम कंप्यूटिंग का कीवर्ड उसके अंदर अपीयर हो, परहैप्स। जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो मेरे एक एजेंसी के साथ काम किया था, व्हाट दे यूज्ड टू टेल अस कि मुझे वो एक कीवर्ड असाइन करते थे। दे आस्क्ड मी टू राइट अ 400 वर्ड आर्टिकल, एंड इन 400 वर्ड आर्टिकल्स के अंदर अराउंड 4 to 8 टाइम्स वो एक कीवर्ड अपीयर होता था। तो लाइकवाइज अगर आपको फ्यूचर में कोई फ्रीलांस गिग मिलती है तो आपसे भी ये चीज एक्सपेक्टेड होगी कि आप उस कीवर्ड के रेलेवेंट जो है वो उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। बट बेयर इन माइंड कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ज्यादा दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। देयर इज टर्म कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। इट्स अ नेगेटिव एसईओ प्रैक्टिस। इसको ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस के अंदर शुमार किया जाता है। अगर बहुत दफा इररेलेवेंट आपका ये कीवर्ड अपीयर हो रहा है तो आपका आर्टिकल फ्लैग भी हो सकता है। देन फाइनली देयर आर टू थिंग्स दैट विल एसेंशियली डिटरमिन कि आपका आर्टिकल कोई बंदा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। एक उसका फीचर्ड इमेज है और दूसरा उसका टाइटल है। गूगल के ऊपर तो आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ही आ जाएगी, बट सोशल मीडिया के ऊपर एक उसका इमेज होगा और एक आपके पास टाइटल होगा। तो आपने टाइटल के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करना है। लाइक यू कैन टेक आउट, लेट्स से आपने 50-60% टाइम आपने स्पेंड किया है ऑन द ओवरऑल कंटेंट बॉडी, तो एटलीस्ट 40% टाइम आपने सिर्फ ये सोचना है कि भाई मेरे आर्टिकल का टाइटल क्या होगा। उसकी वजह ये है कि लाइक कोई बंदा सोशल मीडिया पे या गूगल पे उस आर्टिकल पे क्लिक ही उस वजह से करेगा बेस्ड ऑन द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल। सो यू नीड टू प्रॉपरली क्या कहते हैं फिगर आउट कि आपके आर्टिकल के टाइटल क्या होगा।
उसके अंदर ये है कि टेक्जूस पे हमने स्ट्रेटजी एम्प्लॉय की भी थी, बट वी यूज्ड टू सजेस्ट टू आवर राइटर्स, वो ये था कि हम हर आर्टिकल के 3 टॉपिक सजेस्ट करें, 3 टाइटल सजेस्ट करते थे, और उनमें से फिर एक जो मोस्ट रेलेवेंट होगा एंड बट वी थॉट के लोग इस पे क्लिक करेंगे, वो हम चूज करते थे. सो लाइक यू नीड टू फिगर आउट 3 alternate टाइटल्स बिफोर पब्लिशिंग द कंटेंट जो आपने ऑनलाइन भी आगे किया. तो इसके साथ साथ लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल. इसको मैं आर्टिकल आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, ये मैंने पब्लिश किया हुआ है. सो लेट्स सी, ओके, राइट. सो मैंने आर्टिकल का टाइटल दिया जी, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है जी. फिर जब मैंने बताया था कि हम जब आर्टिकल का स्टार्ट लेंगे तो हमने आर्टिकल के शुरू में स्टार्ट देनी है. सो व्हाट आई डिड वाज, गूगल का एक डी वेव कंप्यूटिंग का क्वांटम कंप्यूटर था, and it was apparently 100 million times faster than today's computers. So like it's an astounding stat. सही है. तो like it क्या कहते हैं, gathers the reader's interest. That's why मैंने आर्टिकल की पहली 2 लाइनों के अंदर ही उसको वहीं पे हाइपरलिंक के साथ मैंने रख दिया. यानी I wrote it down over there. And then दूसरे पैराग्राफ में कि like even though like this is an astounding stat, but there has to be some catch, right? So like मैंने उसको question के तरीके से structure की है कि like what's the catch? Like how is it possible that a quantum computer is so much powerful than a traditional PC? And then afterwards, क्या ये actually, is this actually the case? And then उसके मैंने थोड़ी सी stats बयान कर दी, like what exactly is the D-Wave computer, and what is the price of the D-Wave computer. So like these are all statistics. So like I'm gathering the reader's interest in this article. Okay, like why do you need to know about quantum computing? Here, if someone doesn't know about quantum computing, so like this is where you build up to the main content body. So just what are the basics of quantum computing and what exactly does quantum computing have an edge in against our traditional PCs? फिर आपकी ये मेन कंटेंट बॉडी स्टार्ट हो रही है. सो मैंने हेडिंग्स जो सिलेक्ट की हैं, जैसे मैंने पहले प्रेजेंटेशन में दिखाया था आपको, तो मैंने एनीलिंग का कॉन्सेप्ट लिया है. ठीक है. मैंने ट्रेडिशनल एनीलिंग है या आपके पास यहाँ पर सिमुलेटेड एनीलिंग के बाद क्वांटम एनीलिंग के मैंने थोड़ा सा बयान किया है. फिर आई ऑल्सो इंक्लूडेड एन इमेज विद इन द आर्टिकल, जो मैंने विकिपीडिया से एक इमेज लिया हुआ था. इट्स इजीली अवेलेबल, आप देख भी सकते हैं. देन आई टॉक्ड अबाउट सम रेलेवेंट टर्म्स, एक रेलेवेंट टर्म के बारे में बता दिया. And how exactly does quantum computing have an edge against traditional computing? So yeah, so these are like the headings जो मैंने चूज किए हैं. फिर हम promising factors and impacts के भी थोड़ा सा मैंने कहा कि like why should I talk about this? Why should I talk about this? तो इसके अंदर मैंने एक कोड डाल दिया with much power comes great responsibility. So like when you're writing these articles, you can also include codes, you can also include statistics within the article to make it more appealing to the reader. So, and then moving further down, I also discussed some of the controversies surrounding the D-Wave. And then finally, मैंने article के end पे वो सारे references डाल दिए हैं जहाँ से मैंने वो content gather किया था. So like this is how you properly structure an article and you write it if you want to publish it on a renowned publication, to be precise. With that being said, I think I should leave the floor open to some questions regarding this. अगर आपका कोई question है so far इस चीज के regarding, तो like just raise your hands. We'll allow you to unmute your mic. Article structuring के ऊपर थोड़ा बहुत जो है, if you got any idea. Anyone? You can also use the chat if you want to क्या कहते हैं, ask a question as well. Okay, cool. I guess the quick question नहीं है. So like we'll move on. So this was my article. ये जब आपके साथ presentation share होगी, इसके अंदर सारे links embedded हैं. You can take a look at them again if you want. And अब इसके आगे हम article structure के ऊपर बात करते हैं. So article का structure की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें we'll discuss 2 main structures. One is this one. This is concise.
इसमें आपके पास लीडे आ गया, द लीड ऑफ द आर्टिकल, यू हैव द नट ग्राफ एंड यू हैव द एडिशनल और बैकग्राउंड इन्फो। द लीड ऑफ द आर्टिकल इज द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना आपका, उस पे आपने बेसिकली मोस्ट डिटेल्स डालनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हु व्हाट वेयर वेयर व्हेन। So in that content meeting wala article, if you take a look at that one, you I discussed about क्या कहते हैं the quantum computing recent stats. I discussed about how the D-Wave computer is, let's say, 100 million times faster than traditional PCs. So like this is how you build up to the main content body. You need to appeal to the reader. You need to show them with some stats, some quotes कि भाई ये दुनिया में ये जो आर्टिकल के बारे में जो आपने जिस टॉपिक के बारे में लिखा है, अब दुनिया में इसमें धमाके हो रहे हैं, लेट्स से इसके ऊपर ये होना चाहिए। तो लाइक पीपल आर continuously talking about this. This is how you will gather the reader's attention. After you're done with the lead, you come to the nut graph, which is the actual main point of the story. Nut graph को आप एक और word से भी represent कर सकते हैं. It's called nutshell. Nutshell, in a nutshell, what are you talking about? What is the story of your article? तो लाइक उसके अंदर मेन पॉइंट आपने कुछ पैराग्राफ्स के अंदर एक्सप्लेन करना है कि दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन स्टोरी दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन दिस आर्टिकल, एंड देन आफ्टरवर्ड्स you put in some additional background या relevant info जो उस article के relevant है। इसके साथ साथ इसी सेम चीज को आप further extend भी कर सकते हैं। So like this is here we have an article structure where इसको थोड़ा सा ज्यादा हमने expanded तरीके से कर। So like the most important thing is the lead. Then you have the backup for the lead, which would be the source where you're getting the lead stats and the quotations. Then you have the nut graph. The nut graph is basically the article in a nutshell. What is the main point? What is the main story? And then the lead code. If you have a lead code for the article, do include that in it. Background information. Obviously, why are you writing this article? Why should people care about this article? You need to highlight that as well. And then what is the impact? So like deep इसके quantum computing के अंदर मैंने एक पूरा heading रखी थी कि like how quantum computing is different from traditional computing. So like this is where you need to understand कि quantum computing का impact क्या है, and then उसको further elaborate करके I close it off. Closing में भी अगर आप देखें मेरे ख्याल से this if you take a look at this article, so closing के ऊपर what I try to do is, let's say this was a lot to read, so but I do hope that you got a little grasp about what quantum computing is. It's a complex topic, but I want to hear your thoughts about it in the comment section. Like आप आर्टिकल लंबा बहुत बड़ा लिख सकते हैं, बट अगर आप एंगेजमेंट ड्राइव करनी है, आपने अपने रीडर के साथ क्या कहते हैं डिस्कशन करनी है, तो आर्टिकल के एंड के ऊपर ऑलवेज आस्क योर रीडर्स टू लीव देयर कमेंट्स। एंड इन दिस केस मैंने कहा कि मैंने रेफरेंसेस भी इंक्लोज किए हुए हैं, तो लाइक यू कैन फर्दर डिस्कस इफ यू वांट, रेफरेंसेस को एक्सप्लोर करके भी देख सकते हैं। सो आर्टिकल्स के एंड पे डू ask the readers to leave their comments so that you can engage with them. So like you can see there are around 3 pages of comment threads in this particular article. So like just because I want to hear your thoughts about this topic, so people are discussing it in the comments section. So with that being said, the ending should have a call to action. Basically, you're imploring the reader to like leave his own thoughts in the article, and this essentially allows them to come back and also respond to what you responded to their comment. So essentially आपके article के views भी increase हो रहे होंगे. So once again, you have the lead, you have the backup for the lead, you have the nut graph, which is essentially the article in a nutshell. You have the main point of the story in the nut graph. Then you have the lead quote if present, and then you also supply the background information as to why you are writing this article, and then you highlight the impact of the topic that you're covering, and you further elaborate it, while at the end you just close it off and give a call to action to the reader, like I would want to listen to what you have to say about this topic as well. So this is basically how the article should be structured when you're writing for, let's say, anyone, whether it's a development agency, whether it is a publication, whether it's your own blog, or even let's say if you're writing for a newspaper. So like what you can do is, I would like to listen to your thoughts at the end. Like if you're concluding it, I would like to listen to your thoughts.
please send me a letter at my email address regarding it. So like you can जो editors होते हैं newspapers के वो letters continuously मंगवाते रहते हैं. So like what you can do is you can ask readers to send you emails regarding the subject topic. So that's basically how the articles are structured. So there are some tips that I think you should note these down, and whenever you're writing an article, you should always take a look at के ये check marks पूरे होने चाहिए उसके ऊपर. एक तो ये कि लाइक जो ओपनिंग पैराग्राफ है आपके आर्टिकल का, इट शुड बी ग्रिपिंग, इट शुड इंक्लूड स्टैट्स, इट शुड इंक्लूड कोट्स एंड इट शुड गेट द रीडर्स अटेंशन. तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि लाइक जो जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, when you want to represent yourself as a thought leader, you need to do your homework. So if you include stats, if you include quotes, if you include references, that shows that you did your homework and you know a lot about the subject. Like सही है कि अगर आप एक आर्टिकल के अंदर अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हैं, that's perfectly fine, but it always starts when you quote someone and you include the relevant statistics to build the reader's interest into your article. आपने जब स्टैट्स और कोट्स इंक्लूड करने हैं ना, तो आपने उनको हर सूरत हाइपरलिंक करना है एंड आपने चेक करना है जो स्टैट्स आपने इंक्लूड किए हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हैं या नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक जो फेक न्यूज़ फैल रही है ऑनलाइन, उसकी वजह यही है कि वी डू नॉट चेक आवर सोर्सेज एंड लेटर ऑन इट क्रिएट्स अ हैसल एंड क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन केस even if you're writing for your own blog, if it has like a significantly less following, but उसमें भी अगर कोई भी बंदा आके आपके कुछ आर्टिकल को पढ़ेगा, यू आर बेसिकली मिसलीडिंग समवन if you don't double check your sources and if the stats or the quotes that you have included are incorrect. तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपने स्टैट्स को हाइपरलिंक करना है टू रिप्यूटेड सोर्सेज जहां से आपने वो लिए हैं. ये कोई एरी वेरी पब्लिकेशन भी ना हो कि भाई कोई भी ऑन द इंटरनेट आपने स्टैट उठा के देख लिया, आपने उसको अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर लिया. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. होना बेसिकली उस साइड को इंक्लूड करें इन द आर्टिकल जो कि थोड़ी सी रिनाउंड है, थोड़ा सा लाइक उसकी लाइक रेपो अच्छी है अमंग्स द रीडर्स एंड यू नो लाइक पीपल नो जनरली नो अबाउट इट. देन यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, बेसिकली एन आर्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऐसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. आपने बस दो तीन चार पैराग्राफ लिख के आपने फारिग कर दिया, ऐसे उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होती. बट आर्टिकल के अंदर यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू द रीडर, सो दे आर सपोज्ड टू बी कन्वर्सेशनल. यू नीड टू एट ईच एंड एवरी पैराग्राफ आपने लेट्स से कोड स्टैट्स वगैरह डालें या आपने कोई पॉइंट एक्सप्लेन किया है, आप उसको लिखो ऐसे कि लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल. सो लाइक जब वो आर्टिकल बंदा पढ़ रहा होगा, लाइक उसको ये ना हो कि लाइक वो कोई ऐसे पढ़ रहा है, वो एक आर्टिकल को पढ़ रहा हो, ही इज लाइक एक्चुअली रीडिंग द थॉट्स ऑफ द राइटर and you know he's getting some relevant information about the topic into his mind, and then at the end obviously he'll tell you about what he also thinks. So conversational style हमेशा रखना चाहिए आर्टिकल्स का, unless अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो और उनका अपना कोई स्टाइल है, तो देन ऑब्वियसली यू कैन क्या कहते हैं गो विद दैट वन. एंड आफ्टरवर्ड्स आपने अल्फा बीटा टेस्टिंग करनी है टाइटल की. अल्फा बीटा टेस्टिंग, इवन दो यू माइट बी आस्किंग आई डोंट हैव अ टीम, हाउ वुड आई कंडक्ट अल्फा बीटा टेस्टिंग. सो इसमें वही चीज आ जाती है कि आप अपने साथ एक दो कॉलीग्स रखें, आप आर्टिकल पब्लिश करने से पहले उनको पढ़ाएं और फिर उनसे पूछें कि यार टेल मी व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल. या वो जो मैंने स्ट्रेटजी आपको दी थी कि 3 अल्टरनेटिव हेडिंग्स होनी चाहिए, तो आप उनको वो 3 हेडिंग्स दिखाएं और उनसे कहें कि लाइक व्हिच वन डू यू थिंक इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस आर्टिकल, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन जब आपको रिजल्ट थोड़े बहुत मिले फिर आप उस आर्टिकल को पब्लिश करें. So this allows you to properly optimize the title of your article for maximum views. The second thing is कि आपने A/B testing करनी है on the image of your article. लास्ट पब्लिकेशंस में जब हमारे पास टेक्स्ट में था, जब हम लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स लिखते थे, तो वी हैड अ ग्राफिक डिजाइनर जो कि हु डिजाइन द कवर फॉर अस, लेट्स से द कवर ऑफ द स्टोरी. और कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस के थ्रू इमेजेस वगैरह उठा सकते हैं. वन ऑफ देम इज pixabay.com, आप वहां से ले सकते हैं, या गूगल सर्च में जाके अगर आप टूल्स में जाएं तो वहां पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस के इमेजेस वगैरह आपको एक्सेसिबल हैं, तो यू कैन यूज देम इन योर आर्टिकल.
Otherwise, if you are using an image from, let's say, another competing website या जो भी कोई और publication है, तो article के end के ऊपर always give them credit. You can just write featured image credit and आगे आप publication का नाम जो है. तो image को आपने decide करना है कि like it should be relevant to the article, and if you're unable to find any relevant image in Creative Commons licenses या जो free domain में internet में है, तो you can freely use any other image from a website और उसको end पे आप बस credit दे दें कि like this is where I got this image from. So before we get to article types, once again I'll ask like if are there any questions? किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू अभी तक? एनीवन? समझ आ भी रही है? ये सारे क्लास लगा के गायब हो गए जिस तरह वो ऑनलाइन क्लासेस में होता है. ओके, अल्फा बीटा. ओके, अल्फा बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि लाइक आप जैसे मैंने अभी प्रीवियसली यहाँ पे कहा था एडिटिंग के अंदर, सो लाइक अल्फा बीटा टेस्टिंग आपकी एडिटिंग के अंदर आती है कि आपने 3 अल्टरनेटिव टाइटल्स सोचने हैं आर्टिकल के. लाइक आपने 60% ऑफ द टाइम स्पेंड किया ऑन ड्राफ्टिंग द मेन कंटेंट बॉडी ऑफ द आर्टिकल, बट आपने जो 40% टाइम है, 14% माइट सीम अ लॉट फॉर लाइक वन लाइन जो कि बेसिकली टाइटल बनता है आपका, बट ये जो टाइटल है ना बेसिकली इसी के ऊपर ही आपका कोई भी यूजर जो है वो आके क्या कहते हैं क्लिक करेगा या कोई बंदा आके रीड करेगा. तो दिस इज बेसिकली अल्फा बीटा टेस्टिंग. अल्फा बीटा टेस्टिंग बेसिकली इस सेंस पे हो रही है कि आपके 2 कलीग्स हैं, आपने उनको रेलेवेंट 3 टाइटल्स दिए और आपने उसमें से कहा कि लाइक अगर सोशल मीडिया पे ये आर्टिकल इनमें से 3 हेडिंग्स के ऊपर पब्लिश हो तो विच वन वुड यू मोस्ट लाइकली वांट टू क्लिक. ठीक है, तो इससे फिर आपके पास एक रेलेवेंट इन्फो आ जाता है कि लाइक आपने कौन सा सूटेबल टाइटल सेलेक्ट करना है फॉर योर आर्टिकल जो है. तो एडिटिंग के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. बेसिक डिफरेंस बिटवीन नट ग्राफ एंड इलैबोरेशन. सो नट ग्राफ जो है बेसिकली इट्स द मेन स्टोरी. The article summed up in a few words. So like if you talk about this quantum computing वाला article जो मैंने लिखा हुआ है, so this is where I'm building up to the elaboration part. So like इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ से नीचे सारा जा रहा है, तो मैंने कहा कि like just what are the basics of quantum computing. So this is basically the article in a nutshell. Everything you need to know about quantum computing, and these 2 lines are basically you can say sort of the nut graph, like what this article is about. And then we are further building up to it, quantum computing annealing and then simulated annealing. So this is basically the nut graph being further elaborated in the article itself. So this is basically how quantum annealing works. The nut, what the basic difference is between nut graph and elaboration. समझ आई आपको? ओके कूल. आपको भी समझ आ गई? ओके कूल, ठीक है. ओके, sounds good. All right, so then we go to article types. अगर आप रीडिंग पब्लिकेशंस के लिए काम कर रहे हैं या लेट्स से किसी की सॉफ्टवेयर हाउस या लेट्स से किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो अपने आप को एक थॉट रीडर रिप्रेजेंट करना चाह रही है, सो लाइक दे वुड ऑब्वियसली हैव अ सेक्शन जहाँ पे वो अपने आर्टिकल्स वगैरह कंपाइल कर रहे होंगे. सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, खैर इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट जो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर दीज जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं. Firstly, you have a news article, it's straight and to the point. So I'll give you an example of the news article. So ये जो मैंने स्टोरी बैकलिंक की हुई है यहाँ पर, this is basically a news article. अगर ये खुल जाए. My net seems slow today. Okay, never mind. Let me open up TechJuice. So let's see. इसमें से हम ये कर लेते हैं.
this particular article. So you have this article, okay? So like this is a news article. Pakistan receives its first female Google developer expert for Flutter and Dart. So like this is a news article जो कि precise and to the point है. यहाँ पे उन्होंने main story यानी build up की है with technology advancing exponentially. The developer ecosystem has played a paramount role in these advancements. So इसके आगे पूरा इन्होंने पहले elaboration की है. And then he's talking about who actually is the Google developer expert. And then afterwards, he's talking about Google developer experts हैं क्या. So like he's giving some info about them. But news article के अंदर ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसके अंदर जो राइटर है वो बहुत कम अपनी ओपिनियन खुद देगा. They are usually straight and to the point. So इसने पहले GDEs के बारे में बात की है, फिर दूसरा उसने Flutter के बारे में बताया कि what exactly is Flutter and what exactly is Dart. And then a bit about app development and who exactly is the Google developer expert. So like हर paragraph में अगर आप देखें, like if you take a look at how these paragraphs are structured, हर paragraph के अंदर एक different point बताया गया है. So and her interest in Flutter and Dart. So like this is where he started talking about the GDE, the expert, and then in another paragraph उन्होंने उसके interest के बारे में बताया. And then जो जैसे मैंने आर्टिकल के अंदर बताया था, वो आर्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि दैट यू कैन इंक्लूड कोटेशंस. सो लाइक this is a quotation. This is like the sentiment that she gave once she got to know that she was elected as the GDE. So this is how a news article is generally structured. एक और चीज जो यहाँ पे वैसे हुई भी नहीं है बट a preferred tactic या strategy, उसमें ये है कि like दो चीजें. Let's say if you are breaking the news yourself, then you don't need to give credit to anyone. But if you get the news from another publication, another source, then you need to give them proper credit. उसकी example ये, let's take a look at another article if we can. Most likely इसमें कहीं ना कहीं इसकी example दी हुई होगी. हाँ, so अब ये फवाद चौधरी के बारे में इन्होंने एक ट्वीट, इन्होंने एक थ्रू अ ट्वीट जो है ना टुक टू ट्विटर टुडे टू शेयर अ सीनेट आर्टिकल. सो लाइक ये पूरा एक जो आर्टिकल है ना, उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर एक फॉर्म किया हुआ है. सो लाइक दे आर गिविंग प्रॉपर क्रेडिट्स फ्रॉम वेयर दे गॉट दिस द सोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस आर्टिकल. सो दिस इज हाउ दे आर सपोज्ड टू बी स्ट्रक्चर्ड. एंड इसके अंदर इफ यू टेक अ लुक कि लाइक इन्होंने एक स्टैट के बारे में बयान किया हुआ है कि लाइक द नेशंस आईटी एक्सपोर्ट्स आर क्रॉसिंग $1 billion mark. If you don't include this with a stat, no one is going to with the link, no one is going to believe you. So whenever you're including a quote, whenever you're including a stat, you always need to hyperlink it to the original source where you got the stat from, and then you close off the article. As you can see at the end, he's also asking, what do you think about this particular news story? So like let us know in the comments. So like you can get any engagement from the comments to be precise. So ये आपके पास न्यूज आर्टिकल आ गया. देन यू हैव एन एडिटोरियल. एडिटोरियल के अंदर आपके पास जो है यूजर सेंट्रिक एंड यूजर व्यू पॉइंट बेस्ड आर्टिकल होता है जिसके अंदर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. लाइक इफ यू टेक अ लुक, इसकी भी एग्जांपल यहाँ से आपको दे देता हूँ. मैंने जब व्हाट्सएप का एक इशू आया था, आप लोगों को सबको याद होगा कि लाइक जब प्राइवेसी इश्यूज आने शुरू हो गए थे व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने एक एडिटोरियल लिखा था. आई थिंक आई प्रोबेबली कैन फाइंड इट ओवर हियर, इधर ही कहीं होगा. हाँ, सो लाइक दिस इज वाज बेसिकली एन एडिटोरियल. मैंने कहा कि लाइक we are searching, we are on Facebook, we are on Instagram, we are almost everywhere, yet we are talking about privacy. So basically इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा एक rebuttal लिखा था कि like we shouldn't be too bothered about the WhatsApp privacy policy change. तो like इसके ऊपर मैंने पूरा क्या कहते हैं, I included an infographic in it. This was an editorial. ये पूरा एक किसी वेबसाइट पे बनाया हुआ था, उसको मैंने इंक्लूड किया यहाँ पर. I believe I gave them the credit. Yes, as you can see मैंने वो क्रेडिट दिया प्रॉपर इसका. फिर उसके अंदर मैंने फर्दर बिल्डअप किया है कि लाइक अगर आपने लेट्स से आप बहुत ज़्यादा प्राइवेसी सेंट्रिक हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर दें. So this is like how you can write an editorial article. You need to work, you need to know about what the subject topic, you need to know about the stats, you need to know about what's being done, and then उनके बेसिस के ऊपर आपने पूरा एक let's say rebuttal लिखना है कि भाई आप कैसे, how do you differ from what is being done. So like this is an example of an editorial article.
So like I said कि like अगर आप इन सब platforms को adopt करना चाहते हैं, basically in a nutshell, if you want to adopt, if you want to switch from WhatsApp and you are a lot privacy centric, then you need to do all this stuff as well. And when you're done, then your WhatsApp ditching, viewpoint is justified. So this is basically an example of an editorial article. Then you have a long form research based article. कोई भी आपको let's say कोई brand है, let's say you talk about Unilever, तो Unilever अगर अपने let's say कोई इंडस्ट्री के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के ऊपर एक आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो like that would be an example of a long form research based article. तो वो एक हो सकता है. एंड देन लॉन्ग फॉर्म के अंदर एक और एक कैटेगरी आती है जो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वो लिस्टिकल है. इट्स बेसिकली अ लिस्ट बेस्ड आर्टिकल. एंड इफ यू सर्च ऑनलाइन, वन ऑफ द हाईली ऑप्टिमाइज्ड सर्च इंजन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो लिस्टिकल्स ही होते हैं. बेसिकली उसके अंदर एक तो लोगों को पता होता है कि वो क्या तलाश करने आए हैं. लेट्स से इफ आई एम सर्चिंग अबाउट मोबाइल फोन एक्सेसरीज, तो मेरे आर्टिकल का टाइटल होगा टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन एक्सेसरीज. इसको आप फर्दर लोकेशन बेस्ड ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन एक्सेसरीज इन पाकिस्तान या इन रावलपिंडी या इन लाहौर. प्लस इसको आप फर्दर ऑप्टिमाइज इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपका स्पेसिफिक बजट है, सो लाइक यू कैन से टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन एक्सेसरीज अंडर 5,000 rupees in Pakistan. So this is like how a listicle can be further, उसकी title को आप further improve कर सकते हैं. Before we go to SEO and social media, once again I'll ask, like, are there any questions? Any questions if you guys have? You can also raise your hand if you want to like say something. Okay, I guess नहीं है, तो हम SEO पे जाते हैं. So SEO is social media. So the thing is कि like you might write an article कि आपके दिमाग में आइडिया आया और आप बहुत अच्छे राइटर भी हो, ठीक है, like all things considered, that's a good thing. But if you want people to read your article, you need SEO and social media. So writing an article is one thing, getting people to read it is an art. So like this is something that you need to understand. So if we talk about SEO, इसके ऊपर ना एक पूरा कंप्लीट सेशन हो सकता है जिसके ऊपर आपको सर्च इंजन की बेसिक्स के बारे में बताया जाए. बट फॉर अ कंटेंट राइटर यू नीड टू नो अबाउट सम पार्ट ऑफ द एसईओ इफ यू वांट टू सक्सीड इन द इंडस्ट्री. उसमें ये कि लाइक एक तो ये जो प्रोसेस है, बेसिकली इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर आर्टिकल या वेब पेजेस सो दैट गूगल, बिंग या कोई भी XYZ सर्च इंजन है उस पर इजीली वो इंडेक्स हो सके. एंड दिस इज अ हाईली लुक्रेटिव फील्ड. जो लोग इस डोमेन के अंदर घुसे हुए हैं, दे नो अ लॉट अबाउट लाइक गूगल की रैंकिंग्स, गूगल की एल्गोरिथम्स एंड लाइक व्हाट्स करंटली लाइक इन्फ्लुएंसिंग द रैंकिंग्स. दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो व्हाट यू कैन डू इज you can also start by writing content, and then afterwards you can also become an SEO specialist as well. So but as a content writer, what do you need to know? So like that might be your question. So उसमें ये है कि like कुछ basics हैं. जैसे मैंने कहा कि like अगर आप आर्टिकल के अंदर स्टैट या कोट इंक्लूड करते हैं तो उस पे ना आप यू नीड टू हाइपरलिंक दैट इट टू द सोर्स. अगर आपने कोई भी स्टैट या कोट इंक्लूड किया है तो इसके एग्जांपल ये कि लाइक अगर आप किसी जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अगर आप किसी के रेफरेंस से जाते हो ना, तो बेसिकली यू विल स्टैंड आउट अमंग्स द कैंडिडेट्स बेस्ड अपॉन हूएवर इज रेफरिंग यू. लेट्स से अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एक मीडियोकर बंदा है वो आपको रेफर करता है टू अ जॉब, ठीक है, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी शायद इतनी ना हो इंटरव्यू में. बट अगर आप लेट्स से किसी टेलको या XYZ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, वहां पे कोई उसका पुराना मैनेजर वगैरह जो है आपको रेफर करता है फॉर अ जॉब, देन ऑब्वियसली किसी वजह से यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी, राइट? एंड देन पीपल विल वांट टू इंटरव्यू यू एंड वांट टू नो अबाउट यू. सो सिमिलरली अगर आप किसी क्या कहते हैं वेब पेज को लिंक करते हैं, तो आप गूगल, बिंग या XYZ सर्च इंजन को बता रहे हैं कि दिस इज अ क्रेडिबल सोर्स फॉर अ सर्टेन टॉपिक. That's why you need to link back to it. And if you link back to a website from a website जिसकी reputation अच्छी है, let's say you're a good
मैनेजर है, you're referring someone, तो जो उस बंदे की रेपो एक तो बढ़ जाएगी। तो इन वेब पेजेस टर्म या इन एसईओ टर्म्स, इफ यू आर लिंकिंग बैक फ्रॉम अ गुड वेबसाइट, आप जो वेबसाइट जिसको लिंक बैक कर रहे हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करोगे। सही है। तो लाइकवाइज अगर आप किसी एक सर्टन पेज को लिंक करते हो, ठीक है, आप किसी सर्टन आर्टिकल को लिंक करते हो, लेट्स से अगर आपका ब्लॉग है, ठीक है, और आप डॉन का जो एडिटर है, डॉन या ट्रिब्यून का एडिटर है, वो न्यूज स्टोरी लिख रहा है और उसने न्यूज स्टोरी के अंदर आपके आर्टिकल को लिंक बैक किया है, तो दैट शोज दैट योर ब्लॉग वाज न्यूज वर्दी एंड उसकी रेपो अच्छी है, एंड इट विल दिस विल फर्दर इंक्रीज योर डोमेन अथॉरिटी बिकॉज यू आर गेटिंग लिंक्ड फ्रॉम अ वेबसाइट जिसकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन है। And if you link back to a certain page, that will increase its domain page authority. So these are two metrics जिसके through जो Google पे let's say you search something या Bing पे you search something, जो results आते हैं इसकी basis के ऊपर वो pages ranked होते हैं। So the page authority, domain authority are two terms that you must be aware about. Then you have backlinks, which is basically आपने कोई भी स्टैट लिए, कोट लिए, या आपने कोई भी सोर्स जहां से आप ये आर्टिकल ड्राफ्ट करें उसको आपने बैकलिंक करना है, ठीक है। SCRP जो है बेसिकली इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसके ऊपर बेसिकली जो गूगल का जो फर्स्ट पेज होता है ना रिजल्ट्स का, इट्स बेसिकली कॉल्ड एन SCRP। एंड देन you need to be aware about long tail keywords. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेसिकली ये होते हैं, इसको आप फर्दर फाइवर की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको मैं बताऊंगा कि लाइक क्या होते हैं। बेसिकली स्पेसिफिक टू द पॉइंट कीवर्ड्स हो जिसके ऊपर आप टारगेट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेट्स से कीवर्ड उठाएं विच इज लाइक शॉपिंग, ठीक है, तो शॉपिंग इज लाइक अ वेरी डाइवर्स, बहुत बड़ा लाइक एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप लिख रहे होंगे। बट लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स शॉपिंग, then you're talking about a specific domain अगर आप long tail keywords की बात करें। So like e-commerce shopping, let's say e-commerce shopping in Pakistan, so like this is like a long tail keyword जो इसके ऊपर आपका एक आर्टिकल रैंक हो सकता है। And then you have the alternate text या anchor text कहते हैं इसको, अगर आपने कोई इमेज इंक्लूड की है विद एन आर्टिकल, तो उसके बारे में अगर आप सर्च इंजन को फर्दर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं एक इमेज के बारे में, तो वो ऑल टेक्स्ट होता है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, इसकी बहुत बड़ी एक गाइड है moz.com के ऊपर, आप यहाँ से ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, तो डू गो थ्रू दिस टू लर्न मोर अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी द टाइटल एंड द मेटा डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल के ऊपर तो मैंने अभी शुरू से मैं एम्फसाइज करता जा रहा हूँ कि लाइक अगर आप लोगों ने गूगल पे रैंक अगर आपने अच्छा रखना है अपना, तो आपने टाइटल को टू द पॉइंट रेलेवेंट रखना है। So in this case, this was the website that I founded, and इसके अंदर हमने एक सेक्शन रखा हुआ था जहाँ पे मोबाइल गेम रिक्वायरमेंट्स थी। इन अ नटशेल बेसिकली कि लाइक अगर आपके पास कोई भी एक फोन है, तो लेट्स से कैन इट रन कैंडी क्रश, कैन इट रन लेट्स से ये गैंगस्टर वेगस ही कर लें, या कैन इट रन सबवे सर्फर्स या कॉड मोबाइल या XYZ जो भी आजकल की पॉपुलर गेम्स है, तो लाइक उसके ऊपर एक पूरा एक सेक्शन था हमारा। तो अगर गूगल के ऊपर मैंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी थी, तो मैंने देखना था कि लाइक लोग सर्च क्या कर रहे हैं। पीपल माइट बी सर्चिंग फॉर कैन आई रन कॉड मोबाइल ऑन माय फोन, और ये सर्च कर रहे थे कि लाइक कॉड मोबाइल रिक्वायरमेंट्स। सो लाइकवाइज मैंने कहा कि लाइक ये एक गेम है गैंगस्टर वेगस, और मैंने उसके आगे रिक्वायरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड कीवर्ड डाल दिया, एंड देन मेरे पब्लिकेशन का नाम आया हुआ आगे। सही है। एंड देन you have the meta description, इसके certain length होती है जो कि आप किसी भी plugin से चेक कर सकते हैं। and then afterwards you can see कि इसको कैसे मैंने इसके relevant optimize किया। so like what I did was ऐप का नाम रखा है मैंने, ठीक है, मैंने phone app requirements, these are like some keywords जिसके regarding लोग search कर सकते हैं, लोग अपने CPU GPU के बारे में शायद बात कर सकते हैं। let's say can I run COD mobile on 2 GB RAM phone, तो like RAM का कीवर्ड यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए। एंड देन यू हैव ऑब्वियसली द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन सम डिस्क्रिप्शन जो है इसके ऊपर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू ऑप्टिमाइज द मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेब पेज कि लाइक उसके रेलेवेंट हो जो टॉपिक जिसके अंदर आप एम कर रहे हैं, एंड दैट दिस विल अलाउ यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट्स। अगर आप ये चीज अभी सर्च कर लें अपने गूगल के ऊपर, यू विल सी कि जो ये पेज है ये गूगल के पहले पेज पे अपीयर हो रहा होगा। दिस इज हाउ यू कैन इजीली ऑप्टिमाइज a web page for indexing.
So before I shift to social media, does anyone have any questions regarding SEO? Just asking. SEO के बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी के? Okay. ठीक है. So like let's move on to social media then. SEO जो है ना, अगर गूगल के ऊपर आप बात करें तो लाइक इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. अगर आपने वहाँ पे अपना फ्रॉम स्क्रैच ब्लॉग स्टार्ट करना है, यू नीड टू गेट टू द फर्स्ट पेज if you are starting a new publication. बट सोशल मीडिया में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वायरलिटी डिपेंडेंट होती हैं. वहाँ पे आप इजीली ट्रैफिक ड्राइव भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो लूज योर क्रेडिबिलिटी एज वेल. तो उसमें ये कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने आर्टिकल को वायरल करना है तो उसमें दो चीज़ें वंस अगेन आ जाती हैं. उसमें आपका फीचर्ड इमेज आ जाता है कि आर्टिकल का इमेज क्या है, और दूसरी चीज़ उसका टाइटल आ जाता है. जो टाइटल है, इमेज है, बेसिकली ये डिटरमाइन करेंगे कि लोग आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे. सिंपल एज दैट. ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आप उस ट्रेंड का हैशटैग उठा के, ठीक है, उसके आगे अपना आर्टिकल का टॉपिक डाल दें, सही है, बड़े आराम से आपका जो टॉपिक है वो वायरल हो जाएगा. क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग सिचुएशन में लोग उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पर कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं, तो लोगों के सामने वो आपका आर्टिकल जाएगा. अस्यूमिंग कि उसका टॉपिक अच्छा है, टाइटल अच्छा है, पीपल विल सर्टेनली वांट टू क्लिक ऑन इट. दिस इज व्हाई कि मैंने आपको पहले भी एम्फसाइज किया है कि आपने टाइटल के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है व्हेन यू आर राइटिंग योर आर्टिकल्स. इसके अलावा कंटेंट राइटर्स को कुछ और काम भी असाइन किए जा सकते हैं अगर वो सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं. उनमें से एक कैप्शंस राइटिंग है, दूसरा है हैशटैग रिसर्च. कैप्शंस राइटिंग के अंदर आपके पास आ जाता है कि लाइक अगर आपने लेट्स से किसी प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ आपने उसके बारे में कोई डिटेल्स वगैरह बतानी है, या कोई भी सर्विस है उसके बारे में आप बतानी है, ठीक है, या आप किसी टॉपिक के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हो, तो उसके रेलेवेंट हैशटैग्स क्या हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं. एवरीवन ऑफ अस आई बिलीव नोज अबाउट हैशटैग्स, राइट? So like these are like a good marketing strategy जो like जिसके जो content writers deploy करते हैं. Then जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह है ना, हर एक के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है. अगर आप फेसबुक पे देखें, फेसबुक पे हैशटैग इतने अच्छे काम नहीं करते, ठीक है, तो लाइक फेसबुक पे डिफरेंट है. अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें या लिंक्डइन पे देखें, वहां पे हैशटैग्स काम अच्छा करते हैं. ट्विटर पे हैशटैग्स काम अच्छा करते हैं. तो हर प्लेटफॉर्म की ना अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपने मद्देनजर रखते हुए आपने इसको अपनी स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट करना होगा. दिस इज एन एग्जांपल कैप्शन जो मैंने आपके सामने रखा है. सो इसमें ये है कि एक रेस्टोरेंट डिलीवरी की ऐप है, ठीक है, उसका एक कैप्शन दिया हुआ है. आप एक कैप्शन के अंदर जो है इमोजीज भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर एक कॉल टू एक्शन भी दिया हुआ है कि लाइक अगर आपको कोड चाहिए तो लाइक आप इस लिंक पे जाएं, सही है. एंड देन उसके अंदर आप एक कंसाइज वे के अंदर आप एक स्टार्ट भी इंक्लूड कर सकते हो कि कैसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है वो आपकी रेस्टोरेंट की ऑडियंस को बढ़ा सकती है. सो लाइक दिस इज अ कैप्शन बेसिकली फॉर बिजनेस ओनर्स कि अगर आपके पास रेस्टोरेंट है या कैफे है जो भी है, ठीक है, आप जो है हमारा कस्टमाइज डिलीवरी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं एंड उसके सैलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो लाइक दिस इज अ कैप्शन, लाइक दिस इज लाइक समथिंग दैट वुड appeal to a user, like within let's say 200 words सारी डिटेल्स हमने बता दी हैं. एंड लाइक इसकी ना इस जो क्या कहते हैं कैप्शन की ना 2 या 3 अल्टरेशंस भी होती हैं. लाइक देयर इज मोर देन वन वे इन व्हिच यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट. तो वंस अगेन इसके ऊपर भी आप अल्फा बीटा टेस्टिंग कर सकते हो कि लाइक कौन सा कैप्शन मोर सूटेबल है. सो आई वाज वर्किंग फॉर अ सॉफ्टवेयर हाउस, उनके लिए मैंने ये कैप्शन लिखा था. तो व्हाट वी डिड वाज हमने इस पर्टिकुलर कैप्शन के लिए 3 आइटरेशंस निकाली थी और 3 में से फिर एक को सिलेक्ट किया था जिसको आपने फिर बाद में सोशल मीडिया में डाला था, ठीक है. तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ये लिंक्डइन की पोस्ट है, इसके ऊपर हमने ये पब्लिकेशन में खुद मैनेज कर रहा हूँ. ऑफर लिंक पे फॉलोअर्स 53 थे, बट ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना, इस पे 1000+ व्यूज थे. और उसकी वजह ये थी कि हमने किया ये कि ये जो टॉपिक है, यानी लेट्स से जो ये कंपनी है, इसको हमने इस पोस्ट पे लिंक कर दिया, ठीक है. एंड देन व्हेन द कंपनी पेज लाइक्ड आवर पोस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो लोगों की टाइमलाइन में अपीयर होने लगी एंड देन वी फर्दर गॉट followers into it. So like this is also another strategy which you can employ. Like you can tag influencers within the industry to get their attention, and once they engage with your post, you can also engage with their followers. तो वो उनके फॉलोअर फिर आपको कंटेंट भी पढ़ना शुरू कर देंगे बिकॉज उनके रेलिवेंट ऑब्वियसली आप बात कर रहे हैं, सही है. सो लाइक दिस इज एन एग्जांपल कैप्शन प्लस पोस्ट. सो विद दैट बीइंग सेड, ऑब्वियसली आप लोगों को ये सब कुछ शायद पता ही हो पहले से या मे भी ना पता हो,
but the question in everyone's mind would be like, how exactly do I make money? Before we get to that, any questions regarding SEO या social media so far? लोग मुझे लगता है इफ्तारी की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं. Okay. Okay, so let's start off like how you can make money. ठीक है. तो content writing it's a full-time job and it's a side hustle too. ठीक है. तो like you need to understand कि अगर आपने इसके अंदर एक्सेल करना है तो आपने पहली बात तो ये अपना गोल डिफाइन करना है कि कैसे आपको फुल टाइम जॉब के लिए जाना है या साइड हसल के लिए जाना है. ठीक है. तो टाइम थोड़ा कम है, आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट. देन इसके ऊपर ये कि लाइक जो मैंने प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज किए मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ. मैंने अपवर्क इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने फाइवर इस्तेमाल किया हुआ है, एंड देन देयर इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है द राइटर फाइंडर स्लैश ग्रोथ मशीन. इसको भी आप देख सकते हैं. तो लाइक दो स्ट्रेटजीज होंगी. आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं टू गेट वर्क और यू कैन बिकम अ कंट्रीब्यूटर एट अ लोकल पब्लिकेशन, टेकजूस, मैंगोबाज, पर्लो एटसेट्रा इन पेपर्स. तो अगर आपने इस फील्ड के अंदर एक्सेल करना है with reference to let's say you want to start this off as a side hustle, पहले तो आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है कि इस नीश के बारे में आप लोग बात कर रहे होंगे. ठीक है. फिर आपने दो पोर्टफोलियोज बनाने हैं. दो पोर्टफोलियोज, इसमें एक होगा गोस्ट रिटन कंटेंट. गोस्ट रिटन कंटेंट का मतलब ये है कि आपने आर्टिकल एक XYZ बंदे के लिए लिखा है, इवन दो आर्टिकल आपने लिखा है बट वो उसके नाम से पब्लिश हो रहा होगा, बट आप उसकी एक कॉपी अपने पास गूगल डॉक्स पे जरूर मेंटेन रखें. ठीक है. और दूसरा ये कि आपने मिनिमम 40 आर्टिकल्स पब्लिश रखने हैं अपने नाम के अंडर. और आई वुड रिकमेंड कि medium.com पे आप लोग अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट कर लें और वहां पे लेट्स से पर वीक यू कैन राइट 2 to 3 आर्टिकल्स विच आर ग्रेटर देन 500 वर्ड्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट नीशेस. ठीक है. वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस स्टफ, लेट्स से गोस्ट कंटेंट भी आपके पास है, 40 पब्लिश आर्टिकल्स भी हैं, तो यू कैन इजीली क्रिएट प्रोफाइल्स ऑन अपवर्क एंड फाइवर. वहाँ पे अगर आपने क्या कहते हैं वहाँ से आपने काम वगैरह चाहिए. दूसरा ये है कि आप लोकल पब्लिकेशंस के एडिटर्स को रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब देयर. तो अगर आप अपवर्क पे बात करें तो अपवर्क पे दो चीज़ें. एक तो ये कि आपने प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज रखनी है. दूसरा ये है कि आपने अपने प्रपोजल को स्टैंडर्डाइज करना है एंड उसकी प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज करना है. लाइक इसके अगर आप देखें, इफ यू टेक अ लुक एट माय प्रपोजल जो मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, सो लाइक आई शो दिस टू यू हियर. एक तो ये कि ये मेरी प्रोफाइल है. यू कैन सी 93% मेरा जॉब सक्सेस रेट है. मैंने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कंटेंट राइटिंग की बनाई हुई है, SEO स्पेशलिस्ट, एडिटर, टेक्निकल राइटर, ये मैंने सारा इसके ऊपर किया हुआ है. ठीक है. एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है और मैंने इसके ऊपर पूरा ये अपना ये शो किया हुआ है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो. फिर इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपना प्रपोजल एक स्टैंडर्डाइज बना के रखना है. तो लाइक जो मेरी स्ट्रैटेजी ये है, ये प्रपोजल आप किसी और रेलिवेंट डोमेन के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसमें ये है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, पहली लाइन के अंदर ही मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया. दूसरा ये है कि मैंने किस डोमेन के रिगार्डिंग लिखा है. तो मैंने कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी कवरेज के बारे में लिखा हुआ है और मैंने इन ब्रांड के साथ मैंने काम किया हुआ है पहले. ठीक है. फिर मैंने टूल्स के बारे में बताया कि लेट्स से मैंने SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स हैं उनको भी मैंने यूज किया हुआ है. प्लस अगर मुझे कीवर्ड्स की रिसर्च चाहिए तो मैंने उसके लिए भी ये टूल्स इस्तेमाल किए हुए हैं. फिर रिमोट वर्किंग के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करता हूँ. ये जो टीम्स के ऊपर जो हम बात करेंगे एक स्किल है, इसको आप मेंशन करके आपने टीम्स के ऊपर काम किया हुआ है, स्लैक के ऊपर काम किया हुआ है. लाइकवाइज मैंने गूगल डॉक्स पे किया हुआ है, स्लाइड्स पे किया हुआ है, तो मैंने ये भी शो किया हुआ है. प्लस मेरी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, तो मैंने वो भी इस चीज़ के अंदर इंक्लूड कर दी है. देन मैंने उसके अंदर राइटिंग सैम्पल्स इंक्लूड किए हैं. टेकजूस के 2 आर्टिकल इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, गेम डिबेट के इंक्लूड कर दिए हैं. देन मैंने अपनी पब्लिकेशन जहाँ पे था मैंने उसके 2 आर्टिकल्स इंक्लूड करे जो कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगते हैं कि ये मेरी राइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उनको इंक्लूड कर दिया. फिर मैंने गोस्ट राइटिंग के कुछ कंटेंट इंक्लूड कर दिया कि हाँ मैंने गोस्ट राइटिंग भी की हुई है और मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए लिखा हुआ है. ठीक है. फिर अगर आपको मैंने और कंटेंट को एक्सप्लोर करना है तो नीचे मैंने उसके लिंक्स डाल दिए. And finally, just write, I hope you will consider me for this position. Reach out in case you have any questions. Best, Shreya. So like this is how you can draft your own proposal. ये इस presentation के अंदर link embedded है जो आपके साथ share होगी. You can also go through it again and इसके accordingly अपना भी आप draft कर सकते हैं. ठीक है. तो ये होगी proposal if you want to succeed on Upwork. फिर आपके पास आ गया है जी क्या कहते हैं प्राइसिंग के बारे में.
तो प्राइसिंग के ऊपर अगर आप देखें तो इस चीज के आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने अपने स्किल्स को एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट करना है। लेट्स से इफ यू जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा ये होगा कि यू वुड वांट द पे बट यू वुड आल्सो वांट टू लर्न, ठीक है, तो आप अपना थोड़ी सी प्राइसिंग कम रखें। फिर दूसरी चीज ये कि अपवर्क की जॉब्स के ऊपर ना बिड्स दी हुई होती हैं कि लाइक एवरेज रेट क्या जा रहा है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपने किधर किस एंड के ऊपर अपनी प्राइसिंग करनी है। तीसरी चीज ये है कि आप उस क्लाइंट के ये देखें कि क्लाइंट ने सिमिलर जॉब्स के लिए पहले कितने पैसे दिए हैं। अगर वो पुराना क्लाइंट है तो वो उसके नीचे वहाँ पे हिस्ट्री शो हो रही होती है, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। या एक थंब रूल है जो कंटेंट राइटर्स के लिए आप यूज वगैरह कर सकते हैं। तो लाइक इफ यू हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो आपका 1+ PKR पर वर्ड एट द वेरी मिनिमम होना चाहिए, और ये है कि अप टू 3000 वर्ड्स तक आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर अगर आपका इंटरनेशनल क्लाइंट ये कहता है कि मुझे रिसर्च बेस्ड आर्टिकल चाहिए जो कि ग्रेटर देन 7000 वर्ड्स है, लेट्स से 100 में ई बुक शी बुक टाइप चीज है, तो फिर आप 2+ PKR पर वर्ड चार्ज करोगे उसे एट द वेरी मिनिमम, बिकॉज आपका टाइम ज्यादा लगेगा उस चीज के ऊपर। अगर आपका लोकल क्लाइंट है पाकिस्तानी, इतने पैसे वैसे देते नहीं है, बट उस पर ये है कि लाइक आप 0.7 से लेके 1.5 PKR पर वर्ड तक चार्ज कर सकते हो, बेस्ड ऑन के आपका क्या कहते हैं लेंथ क्या है उस टॉपिक का, यानी आर्टिकल की और उसकी असाइनमेंट क्या है। तो लाइक दिस इज लाइक एज अ जनरल थंब रूल मैं यूज करता हूँ अगर मैंने किसी को कोट करना होता है प्राइसिंग वगैरह जो है। अगर फाइवर की अगर हम बात करें ना, तो फाइवर के ऊपर आपने एक तो ये आई बिलीव अराउंड 7 to 8 gigs आप बना सकते हैं एट द मैक्सिमम, तो वो आपने सारी सारी बनानी है। और आपने बनानी इस तरह है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर उनको ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल फाइवर के ऊपर बेतहाशा कंटेंट राइटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो सारे ये कह रहे हैं आई विल राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल फॉर यू, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। बट मेरा जो सक्सेस की वजह ये थी उसमें ये था कि लाइक मैंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड रखा था। मैंने कहा था कि मेरी डोमेन टेक्नोलॉजी की है और मुझे डेवलपमेंट के बारे में पता है। So like what I would do is I would help software houses. So like I will write articles for app development companies. And you can see इस gig में alone I have around 18 reviews itself. So like you can realize कि लोग actually इस चीज को सर्च करते हैं, अगर उनके relevant domain के relevant उनके topic आ रहा है, उसके relevant लोग सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से सक्सेस का एक बायस बन सकता है। बिकॉज इतनी सैचुरेटेड फील्ड है, अगर आपने उसमें सक्सीड करना है तो आपके पास डोमेन नॉलेज होगी तो आप सक्सीड करोगे, सही है। तो फिर आप अकॉर्डिंगली प्राइस वगैरह भी कर सकते हो। फिर एक और चीज है फाइवर के ऊपर, वो है बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट के ऊपर आप जो है कंटिन्यूसली बिड किया करो, वो वहां पे सेक्शन के ऊपर आपके पास शो हो रही होंगी, एंड देन यू नीड टू रिमेन ऑनलाइन। सो लाइक ये है कि आपके फाइवर की प्रोफाइल से मेरी अभी ये है आ रही है, ठीक है। इफ यू टेक अ लुक, मैंने ये ऐप डेवलपमेंट कंपनीज के लिए बनाया हुआ मैंने। फिर मैंने कहा कि मैं एडिटर भी हूँ, ठीक है, तो लाइक आई विल एडिट योर आर्टिकल्स एंड गिव फीडबैक ऑन द कंटेंट, ये मैंने एक अलग एक बनाई हुई है। फिर मैंने प्रपोजल से काम किया हुआ है। सो लाइक आई हैव वन इन विच आई कैन राइट अ फंडिंग प्रपोजल फॉर योर प्रोडक्ट। प्लस ये है कि अगर आपको यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए तो मैंने उसके ऊपर भी काम किया, मेरा रिलेवेंट पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो मैंने इस आई विल राइट अ स्क्रिप्ट फॉर योर यूट्यूब वीडियो, तो मैंने इसके लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ ये। फिर ये है कि फाइनली एक है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स फॉर डेवलपर्स। ये भी एक गिग मेरी बहुत अच्छी परफॉर्म की है कि मैंने डेवलपर्स के लिए मैं रेलेवेंट आर्टिकल्स देखूँ। यू कैन सी आई हैव अराउंड 7 रिव्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर वन। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर आर्टिकल्स इफ यू वांट। तो हाँ, तो प्राइसिंग के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि आप क्या कहते हैं फाइवर के सेक्शन में जाएं कंटेंट राइटिंग के अंदर, ठीक है, और वहां पे जस्ट सर्च के लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर पीपल क्या कहते हैं चार्जिंग फॉर अ रेलेवेंट टॉपिक। तो आर्टिकल के साथ देखा जाए तो हमने जब मैंने स्टार्ट ऑफ किया था तो मैंने 500 to 600 वर्ड्स के लिए मैंने $5 चार्ज किए थे, जो कि राउंड अबाउट पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से उस वक्त तो 800 रुपीज बनते थे। अब आई डोंट नो लाइक डॉलर रेट क्या जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने प्राइस करना है। फाइवर 20% लेता है, तो ये जो रेट है ना, ये बिल्कुल जस्टिफाइड रेट है इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज एन एंट्री लेवल कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद जब आपको सक्सेस यू गेट यू नो बायर्स एंड यू गेट मोर रिक्वेस्ट एंड सो फोर्थ, फिर आप उसको 500 वर्ड्स को आप चार्ज कर लो बेशक $10 जो है, एंड दैट्स आल्सो जस्टिफाइड कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आपने बहुत क्लाइंट्स का काम किया हुआ, तो आप इजीली ये भी डिमांड कर सकते हैं उनसे। अगर आप लोकल पब्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे हो तो लाइक अगर आपने वहाँ उनके लिए लिखना, तो मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊँ, मैंने टेक जूस को ज्वाइन किया था फर्स्टली एट 2017।
मैंने अपने क्या कहते हैं FSC क्लियर की थी, तो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक एडिटोरियल आर्टिकल लिखा था PTCL के खिलाफ, यू कैन से कि लाइक पता नहीं उस वक्त नेट वगैरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। सो व्हाट आई डिड वाज आई सेंट दैट आर्टिकल टू टेक्चूज via their फेसबुक पेज, और वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ गया था, दे लाइक दैट आर्टिकल, and then वो publish हुआ, and then afterwards I asked them, do you have any openings for part-time writers? And this is how I got in at TechJuice for a part-time capacity in a contributor role. And if they like your articles, they always have openings. आप जरूर उनको send करो। अगर आप सोशल मीडिया पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेट्स से उनके पेजेस के ऊपर, तो आप उनको वो आर्टिकल उनके एडिटर्स को भेजो via LinkedIn, via ट्विटर, via फेसबुक। तो खैर वो कम ही रिस्पॉन्स है, ट्विटर और LinkedIn आर टू बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप उनको आर्टिकल्स वगैरह भेज सकते हो। सो दिस इज लाइक हाउ यू कैन बिल्ड योर फॉलोइंग। और जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, दे जनरली लुक फॉर अ लॉट ऑफ अटेंशन, इनके फॉलोइंग्स अच्छी खासी होती हैं जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं। तो इजी सी ना, आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे उनको आप मैसेज कर लो, नो वन विल माइंड कि आप उनको मैसेज क्यों कर रहे हैं वहाँ पर। एंड वहाँ पे आप अपना आर्टिकल को भेजो कि लाइक दिस इज एन आर्टिकल आई वुड लाइक टू गेट इट पब्लिश्ड, even if you're not the relevant person, just connect me with someone who can help me out in getting this published. तो fingers crossed you'll be able to get in through this method जो है। मेरे लिए तो ये काम कर गया था, मैंने डायरेक्ट उनके सोशल मीडिया पेज पे मैसेज किया था। तो yeah, that's all I guess from my side. So I'll take some questions, feedback and comments from you guys now. If you have any questions, just let me know. I guess मैं mics खोल देता हूँ सारों के, so like you can, if you guys want to talk, आप लोग बोल भी सकते हो। Let me see, yeah, yeah. So guys, you can unmute if you want to say something.